ਧੁੱਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਚੱਲਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰ ਨਾਲ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਜੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਬਾਜੀ ਖਤੀਜਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨੇਕੀ ਖੱਟਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਇਆ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਚੱਲ ਪੈਣ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਰਨ ਲਾਉਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਿੰਧ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਕ ਫੁੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਅਰੂਜ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਤਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਤਕੱਬਰ ਕਰੂ ਜ਼ਿੱਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਝੁਕ ਕੇ ਰਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਓਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਤਨਾ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬੋਝ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰੂਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮਕਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਕੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕੱਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਜਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਖਿਲੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਅਰੂਜ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈ ਹਰ ਅਰੂਜ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਲ ਆਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤਗੀ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ अस्सलाम वालेकुम जी मैं शहीना असद और आप देख रहे हैं शहीना असद का यूट्यूब व्लॉग एक नया दिन नया चम करती खूबसूरत सुबह सूरज से भरपूर मज़ेदार अल्लाह की रहमतों से अल्लाह की हरारत से अल्लाह के नूर से भरा हुआ दिन निकला है आप सारे मेरे सज्जन मित्र मेरे कुकू कोड़े मेरे प्यारे प्यारे सबको अदाब अर्ज़ है खुश हैं जिधर भी हैं ज़रा अंदर ही बैठ जाओ भाई थोड़ी सी जो है ना मुझे खुनकी लगी है थोड़ी सी हमें ज़्यादा नहीं थोड़ी सी खुनकी लगी है तो बस ही ज़िंदगी का आगाज़ हो गया है और चल पड़े हैं ज़िंदगी के आगाज़ में तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी जो है ना रवां दवां है सेहत के साथ तंदरुस्ती के साथ अल्लाह पाक ज़िंदगियाँ दे खुशहालियाँ दे आपको आबाद रखे आपको जो भी आपके दिल की ख्वाहिशें वो पूरी हों लेकिन मुझे कभी कभी याद आता है कि वो दरियाए रावी के साथ ना एक बूढ़ा दरिया होता था आप कहेंगे ये शहीना असद जो है ना ये भी क्या बूढ़े दरिया और जवान दरिया लेके बैठ जाती हैं लेकिन ये हकीकत है कि वहाँ एक बूढ़ा दरिया होता था और बूढ़ा दरिया जो था ना वो कहते हैं दरियाए रावी की एक शक्ल थी बड़ा दरिया जो था ना वो दरियाए रावी की एक शक्ल थी दरियाए रावी सदियों पहले जो तारीख हमें बताती है वो पहले शहर के साथ साथ बहता था ये जो
शाही किला है ना, लाहौर का शाही किला, इसके साथ जो है ना दरिया सारा बहता था। इसीलिए शाही किले की जो बुनियाद है ना, बहुत नीचे से ना तो ऊपर आई है, और फिर ऊपर काफ़ी है, काफ़ी ऊपर है। तो ये शाही किले के साथ साथ बहता हुआ जाता था। और यहाँ शाही किले के साथ जो पुरानी तस्वीरें हैं ना, तो उसमें उन्होंने दिखाया भी हुआ है कि शाही किले के साथ ऊपर बादशाह खड़ा है, ये शहजादा, ये शहजादियाँ, तो नीचे जो है ना वो कश्ती को चला के कोई 2-4 कश्तियाँ दरिया नज़र आ रहा है। किसी ने पोर्ट्रेट बनाया हुआ था जो मैंने म्यूज़ियम में देखा था, और नीचे कश्ती है और ऊपर से किले से ना वो देख रहे हैं, और वो कश्ती कोई, वो भी कोई शहजादी या शहजादा होगा जो कश्ती चला रहा होगा। तो ये दरिया जो है ना, वक्त के साथ आपको पता है कि कुदरत का निज़ाम है कि ये रुख बदल जाता है, कि तूफान आते हैं और जो उसकी वजह से जलजले आते हैं, तो ये रुख चीज़ें बदलती हैं जो बह रही हैं या जो पहाड़ हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि चटियल मैदान सदियों करोड़ों साल पहले होते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पहाड़ बने, उनमें मट्टी कट्टे और रोड़े और पत्थर जो कई ज़मीन पे अल्लाह ताला ने बचाए हुए थे, वो सारे इकट्ठे हो गए, तो वो पहाड़ की सूरत इख्तियार कर गए। कई आबादियाँ जो तबाह हुई, आज कई आबादियाँ उन पहाड़ों के नीचे दबी हुई हैं, और वो पहाड़ हैं, ऊपर देखने में पहाड़ लगते हैं, अंदर वो बस्तियाँ जो बर्बाद हुई, जो अल्लाह का अज़ाब का बाइस बनी, वो पहाड़ हैं। तो इसी तरह ये जो हमारा रावी दरिया था ना, ये बहता बहता अपना रुख इसने बदला, और ये शहर को छोड़ गया, इधर से किले को छोड़ के, तो इसने अपना रुख उधर शादरा की तरफ हो गए। और रास्ते में ये मतलब जब इसने रास्ता बदला, तो ये बुढ़ा दरिया जो आज हम कहते हैं, ये उस वक्त रावी दरिया था, रावी दरिया था। और फिर ये ख़त्म होता, क्योंकि रावी दरिया का कटाव आया, तो रावी दरिया और दूर चला गया, और एक ये दरमियान में टुकड़ा रह गया, ये टुकड़ा रह गया, ये पीछे से कहीं से ना उसके साथ जा मिलता था रावी से, लेकिन ये टुकड़ा चलता रहा दरिया की सूरत में, और रावी के साथ पीछे कहीं इसका बादामी बाग से, कहीं बैग से इसका लिंक था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आबादियाँ इतनी बड़ी कि इस दरिया के पार्ट को जो है ना, ये मेरे अब्बा जी कहते हैं कि हमने खुद ही इस दरिया के पार्ट में देखा है, इतना चौड़ा ये होता था, और यहाँ कश्तियाँ चलती थीं, और यहाँ शूटिंग्स होती थी। पुरानी फिल्में जो है ना, जो कोई शमीमारा दरबन, जब पाकिस्तान बना है उससे पहले भी, और पाकिस्तान जब बना है तो उस वक्त भी यहाँ शूटिंग्स होती थी फिल्मों की, जो दरिया दिखाना होता था, या कोई दरिया के सर पे, आपको पता है दरिया के किनारों पर सरकंडे बुलंद बुलंद खड़े होते हैं, लंबे लंबे काने से ना, उनको सरकंडा सा कहते हैं। तो उधर शूटिंग कोई हो रही है, कोई इस तरह। मेरे पाजी कहते हैं कि क्योंकि मेरे वालिद साहब, मेरे दादा परदादा सब लाहौर के रहने वाले थे, तो वो कहते हैं कि कई दफ़ा इधर खुदकशियाँ, कई लोग कत्ल करके इस दरिया में फेंक जाते थे, उनकी लाशें मिलती थी। इस तरह कहने का मतलब ये है कि ये एक बड़ा दरिया था, कश्तियाँ भी चलती थी, सब होता था। ये जो टुकड़ा एक बाकियात थी उसकी, रावी दरिया की रह गई थी इधर। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आबादी बढ़ी, तो इसके पार्ट में ना वो डाल डाल के उसमें बजरियाँ और जो डालते हैं इसको, इसका कटाव रोकने के लिए या इसको छोटा करने के लिए, तो वो फिर कहते हैं इस तरह वो उसको छोटा 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 होता हुआ, फिर हमने खुद देखा है, एक पतली सी ऐसे लाइन होती थी जिसको बुढ़ा दरिया कहते थे, और आज तो मेरा ख्याल है वो पतली लाइन भी ख़त्म हो गई। अब वो गंदा नाला शायद बन गया हुआ है, अब तो वो एक गंदा नाले की सूरत में उधर शायद है। मुझे तो अब गए हुए भी उस साइड पे मीनारे पाकिस्तान की तरफ, मतलब जिधर वो गंदा नाला, जिधर वो बुढ़ा दरिया था, वो बिल्कुल मीनारे पाकिस्तान के बैक पे साथ साथ बह रहा था, बैक पे मिंटो पार्क ग्राउंड के बैक पे बादामी बाग की तरफ चला जाता था। तो
अब ये हैं हमारे बहुत बचपन की बातें, जब अम्मी जी के साथ कभी मीनार पाकिस्तान जाना और जाके ईद में या कभी इस तरह, तो मीनार पाकिस्तान जाना तो पीछे नज़र आ रहा होता था कि एक छोटा सा मतलब ऐसे नहर की तरह एक बह रहा है। लेकिन मेरे भाजी बताते हैं कि उनके बचपन में ये बहुत बड़ा दरिया था, वो कहते हैं। और ये जाके पीछे बदामी बाग से जाके ये रावी दरिया के साथ जाल टच होता था, मिलता था, और उधर से ही इसको पानी भी पहुंच रहा था सब। क्योंकि गए ज़मानों में कहती हैं कि इधर सारी फसलें होती थी। ये जो मोनी रोड और करीम पार्क अब दाता साहब के साथ सारा बन गया हुआ इलाका, इधर कहते हैं सारी आबादी पहलियाँ ही पहलियाँ थी, इधर खेत ही खेत थे। तो ये पानी जो है उन खेतों को मिलता होगा। बाद में आबादियाँ होने लग गई, वो खेत बिकने लग गए, ज़मीनें बिकने लग गई, घर उधर पैदा होने लग गए और घर बनते चले गए। करीम करीम क्या कहते हैं, करीम मोनी रोड बन गया, करीम आबाद बन गया, इस तरह मतलब काफ़ी इलाके वो इस तरह बन गए फिर। और अब तो वो नज़र ही नहीं आता बुढ़ा दरिया किधर गया और किधर नहीं गया। तो अब तो रावी भी जो है एक नाली सी बन गई है, क्योंकि ये आपको पता ही होगा कि ये मुआहदा हुआ था जब हमारा मंगला डैम बना था ना, तो उस वक्त अयूब खान के साथ इंडिया के जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक मुआहदा किया। अयूब खान जो जनरल अयूब खान था, मार्शल लॉ का दौर था, और ये फौजी जब आते हैं तो ये तो अपनी मर्जी करते हैं, लेकिन अयूब खान ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, मुल्क को पटरी पर चढ़ाया, ये तो उसको क्रेडिट जाता है जनरल अयूब खान को। लेकिन मैं बाद के जनरल्स की बात करती हूँ कि उन्होंने भी कभी किस्म के मुआहदे किए जो कि आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। और ये जो जनरल अयूब खान का मुआहदा था, ये भी इसने भी हमारे दरियाओं को खुशक कर दिया। हमारे 5 दरिया थे और ये 5 इंडिया से आते थे, और ये मुआहदा हो गया कि ये दरिया जो है ना, इनका तसर्रुफ इंडिया करेगा जब मंगला डैम बना है। तो अयूब खान के जेन में ये होगा कि चलो हमारा डैम इतना बड़ा बन गया, हमें अब दरियाओं की ज़रूरत नहीं, जबकि दरियाओं की हमेशा ज़रूरत होती है। आपके लहलहाते जो मुल्क हैं, जो बागात हैं, जो आपके खड़े दरख्त हैं मुस्कुराते हुए, ये जो फूल हैं, ये सारे उन दरियाओं की मरहूने मिन्नत होती हैं कि ज़मीन में पानी होता है, वो अंदर जो है ना ज़मीन को सैराब कर रहा होता है, हमें पता नहीं चल रहा होता। और दूसरा फसलों के लिए, और ये आप यकीन जानेंगे, हमारी अब उधर शादरा और ये दरिया रावी जिधर जिधर से गुजरता था वहाँ लहलहाते खेत थे, फसलें होती थी, अब सब ख़त्म। दरिया भी ख़त्म हो गया क्योंकि इंडिया ने बंद बांध लिए। उन्होंने कहा जी हमारा तो इनके साथ ट्रीटी हुआ है, और हमारे पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो इसके ऊपर डैम बनाते चले गए 5 दरियाओं के ऊपर। ये ब्यास था, सतलुज था, दरिया झेलम था, दरिया रावी था, और कौन सा था, एक और था। 5 दरिया मेरे जेहन में नहीं आ रहा। ये 5 दरियाओं की सरजमीन होने की वजह से पंजाब कहलाता था, पंजाब। तो ये 5 दरियाओं पे इंडिया ने जो है बिजली के मतलब अपने ऊपर वो लगा लिए, और बांध के पानी को इकट्ठा किया, और ख़ुद उन्होंने उससे अपनी बिजलियों की ज़रूरतें पूरी की पंजाब के लिए। क्योंकि पंजाब में जो था, उधर उनके पंजाब में बहुत ज़्यादा मतलब ये बिजली महंगी हुई थी, और उन्होंने किसानों को सहूलतें देने के लिए उधर अपने डैम बनाए छोटे छोटे, और उनसे बिजली पैदा की, और उधर के पंजाब को नई नई सहूलतें दी, नई नई टेक्नोलॉजी दी कि ज़मीन से कितना हम ज़्यादा जो अनाज है वो पैदा कर सकते हैं। और हमारे मुल्क में किसानों को मार दिया गया। ये फिर ऐसी स्टोरियाँ हैं जिनसे आप लोग शायद पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन ये वो तारीख है जो एक बदनमा पाकिस्तान के ऊपर एक दब्बा है ये तारीख का, कि अयूब खान के उन मुआहदों को हम चैलेंज भी कर सकते थे और हमें टाइम भी मिला हुआ था, लेकिन हमारे कोई भी नहीं गया उस आलमी अदालत में। जो वाटर की आलमी अदालतें भी बनी हुई हैं,
उसमें किसी ने अपना मौक़िफ़ जाके बयान नहीं किया। अगर कोई गया भी है तो उसने कहा हाँ जी ये यूब खां के हुए हैं मुआहदे। उफ। बहरहाल ये जो दरियाए रावी था, जिसके ऊपर गाने बने हुए हैं, जिसके ऊपर दास्तानें बनी हुई हैं, जिसके ऊपर ये क्या क्या लोग थे, पूरा लाहौर जाके वहाँ इंजॉय करता होगा किसी दौर में, और बैठते होंगे किनारों पे, और मेले ठेले दरियाओं पे लगते हैं, अमूमन लगते होंगे यकीनन। मगर अनफॉर्चुनेटली कि आज वो जो हमारा क्या अफसानवी एक अफसाना बन गया वो दरिया, उसकी दास्तानें ऐसे लगता है जैसे अफसाने। आपको पता है कि दरियाए रावी के अंदर 12 दरी, कामरान की 12 दरी, हम गए हुए हैं बच्चे जब थे, स्कूल हमें लेके जाता था, स्कूल के ज़रिए गए, फिर कॉलेज के ज़रिए भी गए। तो इतनी खूबसूरत वो इमारत है, अंतर दरिया के थी बिल्कुल। जब हम बड़े छोटे थे स्कूल में थे, और टीचरें लेके जाती थी 6वीं 7वीं की क्लासों को, कश्ती में हम पहले बैठे, कश्ती हमें चलाते हुए उधर उस किनारे पे लेके गई कामरान की 12 दरी के, और फिर हम कामरान की 12 दरी पे एंटर हुए। उस वक़्त भी बहुत अच्छी थी, अंदर इतने बागात थे, आप सोच सकते हैं दरिया के अंदर एक इमारत है, उसके अंदर बागात हैं, फूल बूटे दीवारों पे बने हुए हैं, छतें इतनी खूबसूरत हैं, और फिर तह खाना भी था, कमरे कमरे, और इतना ज़बरदस्त दलान बने हुए, दलान दलान से मेहराब में, इतना खूबसूरत वो था। और वो दरिया में तो और खूबसूरत लगता था ना। तो उस वक़्त मुग़लों ने अपने दौर में दरिया के अंदर ये बनाया था। उन्हें क्या पता था कि यहाँ आने वाले दौर में लोग अपने मुल्क के खुद दुश्मन हो जाएंगे। हो कोई नहीं जानता था। बहरहाल आज वो जो दरिया है वो भी एक अफसाना बन रहा है, इतना बड़ा ऊपर पुल बना हुआ है, और उस पुल पे टैक्स अभी भी चल रहा है। दरिया ख़त्म हो गया है, हम पैदा हुए तो टैक्स चल रहा था, हम इतने बड़े हो गए हैं और टैक्स अभी भी चल रही, यानी कि उस दरिया के उस पुल की लागत आज भी पूरी नहीं हुई। ओह माय गॉड, अल्लाह माफ़ करे। अपने लोगों को कितना तंग किया जाता है, कितना तंग किया जाता है अपने मुल्क को, अपने मुल्क के लोगों को। खिचड़ी पकी है, फिजा कह रही है दम नहीं उठाना, दम नहीं उठाना। अभी रख के गई है दम पे, ऊपर चली गई है, कह रही है कि मैं ऊपर ज़रा गुस्ल ले लूँ, बात ले के फिर आती हूँ, तो दम ना खोलिएगा। मैं कहा चलो ठीक है पुत्र, दम क्यों खोलना है। तो आज खिचड़ी पकाई है। खिचड़ी जो है ना, बड़ा मज़ा आता है उसका, हमें खिचड़ी का ना बहुत मज़ा आता है। तो अभी मैं भाई बैठी आपसे बातें कर रही थी, फिजा जानू आ गई, आगे कहती है कि फूफो जान फ़ोन आया है आपका, उसका। मैंने कहा ठीक है किसी का। तो मैं फिर अंदर आ गई हूँ। अब फिर थोड़ा मैंने कहा बाइक बैठूँ, क्योंकि ज़रा ना धूप है तो अच्छा लग रहा है। ये देखे मेरे पैरों में ना, ये ज़रा पैरों पे अच्छा लगता है, धूप है, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर अंदर चली जाऊँगी। अंदर ज़रा ठंडा होता है भाई, मज़ा आता है। हल्की हल्की धूप है आज, पता नहीं टेम्परेचर, मेरा ख्याल है कोई 12-13 टेम्परेचर है, 12-13। तो अच्छा लगता है धूप थोड़ी मज़े का। देखें कितना भाई मौसम है, ये देखें कितना मज़ा, अच्छा मौसम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो एक पोर्ट्रेट ही बना हुआ है, ये देखें, ये ऐसे लग रहा है कोई पोर्ट्रेट है, ऐसे छोटा सा। वाह मेरे मौला, तेरे रंग कितने प्यारे हैं, ये देखें। मैं तो जब आसमान भी देखती हूँ तो मुझे इतना अल्लाह पे प्यार आता है कि इतना खूबसूरत मेरा रब खुद कितना खूबसूरत है, जो हमें इतनी चीज़ें खूबसूरत जिसने हमें दी हैं। फूलों को देखें, दरख्तों को देखें, आसमान को देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह के कुर्बान जाएं, अल्लाह के कुर्बान जाएं। ये आई है साथ वाली बाजी की तरफ, आदिल भाई की वालदा, जिनकी सहेली हैं बहुत बड़ी, वो देखें बैठी हैं दोनों, गप्पे मार रही हैं। वो देखें, ये महफिल सज गई है इनकी, क्योंकि ये हो गया ना अपना मौसम अच्छा, तो ये जो है गप्पे शुरू हो गए। चाय लाऊं आपके लिए? चाय
मैंने कहा आपने महफिल सजा दी है तो चाय शाय पियेंगे आप? नहीं नहीं कोई चाय बाजी आप पियेंगी चाय? नहीं, अगर भाजी ने चाय कोई पेप्सी, कोई आपके लिए बर्गर, कोई पिज्ज़ा? कोई चीज नहीं। मैं तो अभी खाना खा वो कह रही है मैं मैंने भी भी खाना खाना खाया, अभी दवाई खाई। अच्छा अच्छा। तो मैं इधर वॉक जरा मैं कहा 15 मिनट जरा फिर लूँ खाना खाने के फौरन बात करते हैं बैठना नहीं चाहिए हवा बहुत चल रही ये है। वहाँ है नहीं थी कि मैं वापस आ रही हूँ तो यार मैं देख लेता ना तो ये साइकिल आप चला रही थी? हाँ मैंने कहा मैं चला लूँ साइकिल ये देख रही है बच्ची बन रही है, साइकिल चलाती हैं छोटी बन बच्ची। गई और बाजी ने मुझे आवाज दी आ जाओ आ जाओ आ बच्ची छोटी आ जा बच्ची छोटी आ जा तो मैं आ गई मेरी बच्ची आ जा, बच्ची बस कर दे, धूप बड़ी आ गई है। चाहिए ना पर वो और की कहना कि वो मन दसो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਧੁੱਪ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ चलो ਚਲੋ चलो ठीक। ਜਰਾ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂਕਿ चलेंगे। ਧੁੱਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸਮ ਵਾਸਤੇ नहीं आप देखें कनाडा में ये धूप कितनी जबरदस्त है, कितनी जब अच्छी धूप लगती आती है तो कितना और मतलब कितनी मजा। अच्छी लगती है ये पाकिस्तानियों को हाँ, पता हाँ, है क्योंकि बड़ी- उधर बड़ी। तो धूप से तौबा तौबा अंदर घुसते हैं हम हाँ। सब जब हम भी रहते थे अब तो धूप जो है वो तो अच्छी इधर तो बहुत अच्छी लगती है हाँ, इधर अच्छी लगती है, उधर नहीं अच्छी लगती। उधर गर्मी जो बहुत होती है हाँ उधर गर्मी इतनी अभी भी कहते हैं बड़ी गर्मी पड़ने लग गई है अच्छा सुना है मैंने कि बहुत गर्मी हो गई हाँ, वो मेरी बहन भी बोल रही थी बहुत गर्मी है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। हाँ, ਤੁਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ पाकिस्तान जा रहे हैं? पासपोर्ट ही नहीं बना तो जाना कैसे? पाकिस्तान ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹਾਲੀ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ हाँ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान जाना है ना कराची कब? मेरी इनकी भांजी की भांजी दो और भांजे थी, एक हाँ भांजी की शादी है अच्छा तो लेकिन पासपोर्ट भेजो भाई कोई एक हफ्ता हो गया एक हफ्ता तो हो गया है ना नहीं वो कैसे आ जाएगा, आ पता नहीं जाएगा। मिला, आदर नहीं पता। की कर दसा अभी आज जाना है फिर बनाने। ਆਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਹਾਲੀ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਏ ਹਾਏ चले कोई नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी, टाइम लगता है, हो जाता है। ਹੋਣੇ ਉਹ मैं ਐਮਰਜੈਂਸੀ मैं अंदर हूँ फिर है, ਅੱਛਾ तो सकते हो एमरजेंसी करान जरा जल्दी हो जाए हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, इधर काम हो जाती है, इधर इतना इशू नहीं हो है। जाएगा। नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ हाँ हाँ इधर हो जाती ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ है। लो जी चलिए अंदर जाओ जाओ तितली नंबर 2 को देखें वो क्या कर रही हैं। हाँ, तितली नंबर 2 मेरे ख्याल में ऊपर कमरे में है, फ़ोन कर रही हैं अपना फैमिली को, अपने मॉम डैड से गप्पे मार रही हैं। तो आई वोंट डिस्टर्ब हर, इंजॉय करें, गप्पे मारें अपने माँ बाप से। तो बड़ा मज़ा आता है, इतनी दूर आप होते हैं और रोज़ मौका मिलता है वीडियो कॉल या वैसे, तो बड़ा मज़ा आता है, नो डाउट। ख़ास तौर पे बच्चियों को तो बहुत ज़्यादा दिल करता है अपने माँ बाप से गपशप लगाने का। तो उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, वो करें अपनी गपशप लगाएं। तो फिर मिलते हैं जनाब दोबारा। अभी कोई छोटे मोटे काम पे जाना है, आपको भी लेके चलेंगे, तैयारी पकड़े आप भी, ओके। अच्छा जानू जुमानू जानू हानू भाई तो काफ़ी देखे मैं तो वो अंदर आ गई हूँ भाई काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे ज़रा डिस्टर्ब ये बताएं कि ये जो जानू होता है, जानू, जी जी ये कितना अच्छा लफ्ज़ है। हाँ 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 मो माय बेबी माय हनी, इसकी निस्बत जानू ज़्यादा अच्छा है नहीं मीनिंग तो एक ही है ना, वो इंग्लिश में है, ये एक उर्दू मिनट में। मुझे लगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हम जानू बेबी और ये जो है ये लफ्ज़ तो एक ही, मीनिंग तो सबके एक ही हैं, लेकिन हम जानू को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये जानू से जो है हमें वो है लगाव ज़्यादा है शायद, शायद क्योंकि हमारी ज़ुबान है, इस वजह से। हमारे कल्चर में ये चीज़ है ना जानू जान ये वो तो इस वजह से शायद हम मतलब करते हैं इम्प्रेस्ड रहते हैं इन चीज़ों से। हाँ, हाँ, ठीक इस कह रहे वजह हैं। से। लेकिन बेबी, सोनू, जानू, चिकी चिकी, आजकल ये बेबी बूबी चल गया वरना तो बेबी बूबी बेबा कोई नहीं था नहीं ये मतलब ठीक है, बुरा नहीं है। मैं तो इसको जो है, मैं अब आपको हाँ प्यार से कोई कुछ भी कहे तो वो अच्छा अब है मैं आपको तितली कहता हूँ, बुलबुल कह देता हूँ। तितली तो हमारे मुल्क में मरवई था क्योंकि ये अफगानी ये जो उधर के सारे पठान लोग हैं ना ये तितली बुलबुल ये बुल
गुल ये तो मरवज है ये गुल वैसे हम बहुत कहते हैं। हाँ गुल बीबी गुले जाना, गुले जाना बहार, जैसे मेरा नाम आपने रखा हुआ है बीबी गुल बीबी गुल, बीबी गुल और मम्मी का नाम था माँ गुल। माह गुल। और नानों का दादों का नानों का क्या नाम था? उनका था कुको जान। कुको जान, वो कुको एक थी, शाह गुल है एक शाह गुल थी। हाँ और एक गुले गुलजार है यार। वो भी है एक। गुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है तू, चश्मे दीदार दिले दिलजार नजर आता है क्यों। वाह भाई, इधर तो देखे जी शेर चल गया ऐसा कि मैं इम्प्रेस हो गई हूँ कि इतना जबरदस्त शेर इन्होंने बोल दिया। यानी गुले कि- गुलजार दिल से बाजार नजर आता है क्यों। वाह भाई, देखें कितना अच्छा तरीका है। गुले गुलजार आपको कह रही है, Yes. फूलों का एक गुलदस्ता है, आप एक मुजस्मा है, एक पूरा बाग पूरा है बाग है, एक शजर पूरा। गुले गुलजार। गुले गुलजार आपको पूरा दर्जा दे दिया। क्यों बेजार नजर आता है या तो आवाजार नजर आ, अब आप नाराज है ना और मुझे समझ नहीं आ रही और मैं कितने प्यार से आपको पूछ रहा हूँ। गुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है तू, चश्मे दीदार लबे यार के नजर आता है तू। चश्मे दीदार, ये मतलब है कि आंख का दीदार और लबे यार के होंठों का यार के क्या है। चश्मे दीदार हाँ लबे यार नजर आता, मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि तुम मेरे लबों को क्यों नहीं देख रही, मैं जो अटर कर रहा हूँ, जो अच्छा, निकाल रहा हूँ, लबे यार जो कह रहे हैं देख, उसको देखो। गौर करो। ओ माय इधर गॉड, फंसी हुई हो, मैं बोकर मारनी है, मैं बर्तन धोने ने, क्या करती हैं आप? मैंने ये कभी काम नहीं किया, सबको पता है। हम तो डिश वाशर यूज करते हैं। क्यों फिजा जानू, मेरा फिजा जानू भी आ गया। हम तो डिश वाशर यूज करते हैं और तो हमें कोई नहीं है। हाँ सीरियस थोड़े आप गुलो गुलजार हम तो पहले ही कह रहे हैं गुलो गुलजार क्यों नजर आता है आवाजार। तो चले खैर, ये बड़ा अच्छा तरीका है गुफ्तगू का कि आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ें किया करें। और मेरे ख्याल में ये मज़ा उर्दू में है, किसी और नहीं ये language आपकी में। पर्शियन है, पर्शियन ये पर्शियन तो आपकी पर्शियन है। हाँ। हमारा पर्शियन लेकिन पहले है। अब हमारे ये उर्दू के लफ्ज भी हैं, ये लफ्ज उर्दू में भी चलते हैं किताबों में। नहीं, ये गुले है। गुलजार, गुले गुलजार है तो पर्शियन, ठीक नजर आ रहा है तो पर्शियन का लफ्ज, लेकिन ये उर्दू का भी अब बन चुका है। गुल का मतलब फूल, गुलजार का मतलब ये सारा जो गुलजार है, मतलब सारा बाग जो फूलों से भरी जगह है ना, वो गुलजार है। तो गुले गुलजार आगे क्या है, क्यों बेजार, क्यों बेजार, बेजार भी आपको पता है कि सारा उर्दू का लफ्ज़ है, लेकिन ये पर्शियन में भी है, ये पर्शियन के लफ्ज़ जो, क्योंकि उर्दू जो है वो अरबी, पर्शियन, संस्कृत और पंजाबी, ये पंजाबी नहीं थोड़े बहुत पंजाबी के भी लफ्ज़ हैं। वो बाद में आ गए हाँ होंगे। तो ये सारे इसमें शामिल हुए हुए हैं। तो इस वजह से ये अब उर्दू है, गुले गुलजार अब हम चश्मे अपना यार। जो है ना मजमुए गुलजार, हमारे व्यूअर्स, इनका जो है ना ग्रुप, उनको हम वो करते हैं दिल की गहराइयों से वो करते हैं खुदा हाफिज। अपने ये जो हमारा Viewers गुलदस्ता को, है, गुलदस्ता जो असल गुलदस्ता हमारा। गुलदस्ता है ये फैमिली व्लॉग, इनकी बात वो कर रहे हैं कि इनको खुदा हाफिज करते हैं। इंशाल्लाह ताला एक नया व्लॉग, नया दिन लेके कल फिर हाजिर खिदमत होंगे। ये दो बुलबुल के जोड़े, ये ओल्ड बुलबुल है, लोग तो कह देते मैं हैं। एक चीज़ सोच रहा था, मैंने कहा एक ड्यूट गाना जो होता है औरत और मर्द, वो हम थोड़ा थोड़ा गा तो लेते हैं, शौक भी रखते हैं, तो एक गाना ना गाएं अपने व्यूअर्स के लिए, ज़रूर, बैठ के ना बाकायदा कैमरा फिट करके, बिल्कुल। और अगर उस पे पियानो पे मैं थोड़ा सा एक बेस हल्की सी बना के हम डुइट गाना गाते हैं। ठीक है, ये मैंने सोचा है। आप जब कहेंगे हम गा लेंगे, ये ऐसी क्या व्यूअर बात। से इजाज़त लें, इजाज़त ही ये इजाज़त अगर है। ओके करेंगे तो हम इस पे वर्किंग करते हैं। चलें थोड़ी आप। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि गले इतने तो हमारे हैं नहीं, लेकिन ज़िंदगी में मज़ा करने के लिए मौजें शैतानी तो एक बनाएंगे, ड्यूट गाना चलाएंगे इंशाल्लाह। करें जी। चलें जी, ठीक है। एक पता है मम्मी जो हैं वो मुझे इसको क्या से सुनाती होती थी लोरी
की ज़दा किया ज़दा गुल बुदा बादाम ज़दा, इनको याद है। की ज़दा किया ज़दा गुल बुदा बादाम ज़दा, चश्मे दस्त खुसर बिश्किना बच्चों बके बादाम ज़दा, दर्द से खुसर बिश्कना। बिश्किना बच्चों बके बादाम ज़दा। आए ये खुसर का जो दस्त उठा है मारने के लिए, हाँ। वो जो चोब लकड़ी है, चोब लकड़ी को कहते हैं ना, तो जो चोब उसने मारी है उस दस्त से, लकड़ी से। वो भी हमें बादाम की तरह लगी है। बड़ी बड़ी बच्चों को जरा खिलाने खिलाने ये बच्चों के लिए होता था। और देखें कितनी अच्छी ये इन्होंने लोरियां बनाई थी कि खुसर की भी तारीफ कर रहे हैं अपने सुसर की। एक और होता था, ये था एक मम्मी और बोलती होती थी, क्या था वो मुझे अब याद नहीं आया, तो थोड़ा सा बोले उसका कुछ फिर बताएंगे। याद मैं क्या आया तो बताऊंगी, कोई थोड़ा सा वर्ड भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो भी एक बड़ा ज़रा लंबी सी थी। वो पूरी एक रुबाई थी लंबी। अच्छा अच्छा। हाँ वो एक ख़याम की तो नहीं थी, ख़याम की रुबाई? नहीं, ये आपके अफगानियों की रुबाई थी, अब पता नहीं। ख़याम भी अफगानी था। हाँ हाँ और बिल्कुल। आपको पता है कि मैं उस दिन देख रहा था कि ये जितने बुजुर्ग हैं ना, ये मतलब मियाँ मीर और दाता दरबार और अजमेरी, ये सारे पठान थे, हाँ उधर से ही आए थे। हाँ सब अफगानी थे ये। सब उधर से आए थे अपना इल्म सीखने के लिए, इल्म सीखने के लिए। क्योंकि बात ये है कि जैसे हमारी अराई मियाँ फैमिली थी ना, तो वो हमेशा से तालीम, जब से चौरों ने आ गया होगा, वो तालीम हासिल करते थे और ख़वातीन को भी तालीम देते थे। उस दौर में पार्टीशन से पहले उनकी औरतें लंदन गई हैं तालीम हासिल करने, और इस तरह। इसी तरह जब मैं पठानों की तरफ या अफ़गानियों की तरफ हम जाते हैं, तो हम देखते हैं कि आप लोग भी तालीम को तरजीह देते थे। देखो ना, ये जितने बुजुर्गवार आए हैं, मतलब जैसे दाता गंज बख्श आए हैं, ये क़याम है शायर जो बहुत बड़े गुजरे हैं, और भी होंगे, हमें पता नहीं है, तारीख खोल लें तो पता चलेगा कि कौन कौन है जो कि शायर उधर से नहीं आए। बड़े बड़े बुजुर्ग की जिनकी ये सूफिया कराम, सूफिया कराम ना, मैं उनके नाम अभी मुझे भी याद, लेकिन सब टॉप के जो फेमस है ना, उधर से आए हैं। वो सारे पठान थे। वही ना, उनके एक तो मज़हब उधर बड़ा एलिमेंट था इस्लाम का, और वो फिर इधर सीखने कुछ, इधर कोई बड़े बड़े बैठे होंगे जो इधर आ जाए, या इधर नहीं सीखने नहीं आते थे, यहाँ कुफरस्तान था, तबलीग या यहाँ काफर, मतलब काफर तो उसे कहते हैं जो अल्लाह के फरमान का इनकार कर रहा होता है। तो ये तो हम मुसलमान भी काफर ही हैं, मुझे तो हाँ वैसे ही है ऐसे जो ही, क्योंकि कौन मुसलमान अल्लाह की कुरान को ओबे कर रहा है, फरमान तो को वो नहीं obey कर रहा है। जानते हुए, जानते हुए जो नहीं जानते हुए नहीं करता वो काफर होता है। वो जो तो अनजान, जानते ही नहीं है, वो तो जो लगे जानते हुए नहीं उससे आप काफर कैसे गए? उससे तो पता ही कुछ नहीं है। काफिर का मतलब जानते ये हुए है, जो कर रहे हैं। इनकार करने वाला, ख्वाब वो मेरा ख्याल है जान रहा है या नहीं जान रहा, क्योंकि इल्म तो अल्लाह कहते हैं ना, तुम्हें अगर नहीं पता तो जाके तलाश करो। अल्लाह पाक ये भी कहते हैं कि तुम ये नहीं तुम्हें पता तो तलाश करो। नहीं, जो तलाश हुई पड़ी है, कुरान हाँ, पढ़ा है, वो तो ज्यादा तो ही फिर वो काफर तो वही हुआ ना, वो सामने आपके घर में पड़ा हुआ है। बिल्कुल वो वीडियो में हम कुछ बता देते हैं, कुछ दोस्तों महफिल में पता चलता है, तो अगर आप नहीं करते तो कुफर करते हैं आप, मतलब असूलन अरबी में काफिर कहते हैं इनकार करने वाला। इनकार हो गया। अब हम नहीं कुछ बात करते, नहीं हम काफर, हम मजहबी बात है हम ये। काफर, आप खुद अपनी जगह पे सारे सोचें जो भी देख रहे हैं कि क्या हम इनका मुनकिर में अल्लाह के उस पर जितने भी फरमान हैं हम कब चलते हैं, बहुत कम चलते हैं। जहाँ हमारा मफाद नहीं होता वो नहीं हम करते। चले कोई नहीं, लंबा हो गया, बात लंबी हो गई है। हम दोनों जो है ना एक गाने का सोच रहे हैं, गाना आपको सुनाएं तो बताएं, हम करें इस पर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें। और बड़ा खूबसूरत जो है ना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले, मैं कहाँ से आशा भोसले, मेरी दो आवाज़ ही नहीं ठीक। अब नहीं चलें, आप खोसा खोसे हो जाएंगी, मैं इकबाल बानो, इकबाल बानो बन जाएंगी, मैं जो है मोहम्मद रफ़ी। चलो ओके, तो इसकी तैयारी करें जी, क्या कहते हैं आप? पहले इजाज़त दें। इजाज़त। इंशाल्लाह तैयारी पे बहुत टाइम लगना है, आपको पता है, पता नहीं महीना लगना है, 2 चलें, महीने, उठे 3 उठे महीने। निकलें अभी, तो आज से ही शुरू करते हैं, अभी निकलें, आज से ही शुरू करते हैं। चलें। चलें, ओके, बाय बाय, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।